morning dear students, welcome you all of you in today's class. See, yesterday we have solved the exercise A. Okay, so in the exercise A we have we have to underline the noun and encircle in the verbs. We have to just find out what is the verb and what is the noun. Okay, so today we are going to going to see the exercise B. Okay, let's see. Fill in the following blanks with the suitable words from the box. One is done for you. See, in the page number 26 we have solved these portions. What is that? See, यहाँ पे जो दिया है वो एक blanks दिया है. The sentence, the some words we have to we have to find the correct answer and we just fill in the sentence. Okay, तो हमको जो भी words दिए हैं in the sentence में we have to find the correct one, those who match the sentence. Okay, see the first one, the soldiers march along the road. Already they have done for us, मतलब ऑलरेडी उन्होंने एक दे दिया है. क्या है? द सोल्जर मार्च अलोंग द रोड. मतलब सोल्जर है वो क्या कर रहे हैं? रोड से मार्च करते हुए जा रहे हैं. मार्च मीन्स क्या हो रहा है? लेफ्ट राइट है ना, लाइक दिस. सेकेंड, द स्टार्स इन द स्काई. जो तारे हैं वो क्या कर रहे हैं? वी हैव टू फाइंड आउट. इट्स अ फर्स्ट शाइन्स. व्हाट इज दैट? इट्स अ शाइन्स. Shines मतलब what? It's a चमकना. मतलब the star shines in the sky. मतलब जो star है वो कहाँ shine हो रहे हैं? In the sky, आकाश में. Okay. The ox, the cart. Ox मतलब बैल. Cart मतलब क्या होता है? घोड़ा गाड़ी. वो क्या कर रहे हैं? The ox pulls. It's a pulls means what? It is a ढकलना. हम जैसे बोलते हैं ना. So the ox pulls the cart. जो आउल है, जो ऑक्स है, जो बैल है, वो घोड़ा गाड़ी क्या कर रहे हैं? जस्ट पुल्स मतलब ढकलना. ओके. द पोस्टमैन ब्रैकेट लेटर्स. क्या करता है वो पोस्टमैन? आई थिंक द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर. तो क्या आएगा? पोस्टमैन जो है वो हमारे लिए क्या लाता है? लेटर्स. तो पोस्टमैन ब्रिंग्स, BRINGS. ब्रिंग्स मतलब क्या होता है? लाना, है ना. तो द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर. जो पोस्टमैन है वो हमारे लिए क्या लाता है? हमारे लिए वो लेटर्स लाता है. ओके. द मंकी द ट्री. एवरीबडी नोज द मंकी. वी हैव एवरी टाइम वी हैव सीन द मंकी ना क्लाइंब climbs the tree. मतलब मंकी क्या करता है? वो झाड़ के ऊपर चढ़ता है. तो what is the meaning of climbs? चढ़ना. CLIMBS climbs. okay, तो monkeys climbs the tree. मतलब जो बंदर है वो क्या कर रहे हैं? वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं. ओके. the horses means घोड़े. the horses around the field. मतलब जो हॉर्सेस है वो अराउंड द फील्ड मतलब जो जगह है, जो मैदान है वहां पे वो क्या कर रहे हैं? गैलो. फिफ्थ वन इज इट्स अ गैलो. ओके. GALLOP. इट्स अ गैलो. द रेन डाउन द स्काई. द रेन इज डाउन द स्काई. मतलब जो बारिश है वो स्काई में से क्या हो रही है? पोर्स गिर रही है. मतलब हम बोलते हैं ना कि नीचे आ रही है वो. तो क्या आएगा वहां पे? इट्स अ पोर्स. 6 POURS पोर्स. ओके. देन द गार्ड देयर विसेस. जो वो एक गार्ड रहता है लाइक चौकीदार. इफ ही सी. अगर वो किसी अजनबी को या स्ट्रेंजर को देखता है एंड obviously in the midnight the guard blow his whistles. मतलब वो क्या करता है? the guard whistles बजाता है. blow means क्या होता है? बजाना. हम जैसे बोलते हैं ना blow the horn, है ना.
blow the horn मतलब horn बजाओ. See like this. Okay. So first one, see, you just look at the blackboard. I am reading once again the answers. First, the star shines in the sky. The ox pulls the cart मतलब बैल क्या कर रहा है, घोड़ा गाड़ी को पुल कर रहा है मतलब ढकेल रहा है. The postman brings letter. postman क्या कर रहा है, लेटर हमारे लिए ला रहा है. Then the monkey climbs. जो बंदर है वो monkeys है वो क्या कर रहे हैं, झाड़ पर चढ़ रहे हैं. Then fifth, yes, the horses gallop around the field. Then the rain pours in down the sky. The guards blow their whistles. Okay. See, we have solved our exercise B. Then I am reading. Let's listen. Your teacher will read out some words from the lesson which are written in a short form. Listen to her and repeat after her their full form. है ना, यहाँ पे क्या बोला है, जो टीचर है वो क्या करेगी, some words मतलब कुछ वर्ड्स हैं लेसन के वो लिखेगी इन शॉर्ट फॉर्म में. You have to write it down in a full form. See, I am just giving you example. Then you will understand easily what the questions asked. क्या बोला है, अगर हम बोलते हैं won't, I won't go, ये won't हो गया. ओके, क्या बोला है कि your teacher will read out some lesson which are written in a short form. मतलब whenever I will teach, every teacher are teaching, so sometimes teacher pronounce या speak out the short form. जैसे like हम बोलते हैं कि don't, won't, like this. So won't means कैसे, it's a will not, हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे don't बोल दिया, don't. So do not. Okay. Then हम क्या बोलेंगे, can't, तो cannot. Understood? These are the short forms. Sometimes teacher and every person they know the words of short form. They speak out, but it's the full form of the short form. समझ में आ गया? तो आपको you have to write the at least 10 short form करना है, उसके long form भी आपको लिखना है. Understood? Okay. Next. If you want to write it down, for example, you can write. Okay, let's speak from groups and speak about. मतलब how will you feel if or sometimes shout at you suddenly? See the page number 26. These two questions it's for students only, not for me. Okay, मतलब मेरे लिए तो रहता ही नहीं है, but ये आपको खुद होके लिखना है. Okay, I'm just giving you a clue only. See, क्या बोला है कि how will you feel if someone shouts at you suddenly? मतलब suddenly you are sitting on the corner, suddenly the parents, the friends, any brothers and sisters, suddenly they shouts on you. अगर अचानक वो आपको चिल्लाते हैं तो आप क्या महसूस करोगे? What do you feel? So you have to write the answers. Okay, समझ में आया? उसका मीनिंग क्या है कि सडनली अचानक ही कोई अगर आप पर चिल्लाए, गुस्सा हो, तो आपको क्या महसूस करोगे? What do you feel that time? Okay, what will you do? उसके बाद है सेकंड आंसर. तो फिर आप क्या करोगे? उसको अगेन सेम रिप्लाई, यू ऑल्सो शाउट ऑल्सो, या आप पूछोगे व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर शाउटेड मी, वो लिखोगे, है ना. तो कोई भी सडनली शाउट होने के बाद व्हाट्स योर रिएक्शन टू गिव who has shouts you. Understood? वो आपको solve करना है. Okay, then use words like I will be surprised, I will try to find out the reason, I will not get angry, I will not fight but talk clearly. देखो यहाँ पे क्या दिया है, 26 में जो let's speak है 26 का, यहाँ पे उन्होंने clue दिया है, बोला है कि use words like, क्या use करना है, I will be surprised. If someone shouted on you, that time you will surprise. आपको एकदम क्या लगेगा, एकदम सरप्राइज, आश्चर्यचकित. Why you got a surprise? Because
someone is shouted you knowing the reason, मतलब कुछ पता ही नहीं होगा और वो सडनली आप पे क्या कर रहा है, शाउट कर रहा है, मतलब चिल्ला रहा है. ओके, I will try to find out the reason. I told you, obviously, if I will shout you all, तो what is your reaction, ma'am? What's happened? Why you are shouting me? So obviously ना आप तो मुझे बोलोगे मैडम आपने किस बात के लिए, what is happening, क्या हुआ कि आपने चिल्लाया. तो आप रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे. अगर इफ यू आर नॉट डूइंग होमवर्क, सो ऑब्वियसली आई विल शाउट, है ना. तो उसी प्रकार से आप क्या करोगे, जो रीजन है वो ढूंढने की कोशिश करोगे. आई विल नॉट गेट एंग्री, आप गुस्सा नहीं करोगे. ऑब्वियसली इफ एल्डर्स, इफ पेरेंट्स शाउट्स ऑन यू, हाउ यू विल गेट एंग्री. आप एंग्री मतलब गुस्सा हो ही नहीं सकते, है ना. अगर होंगे भी, इफ यू आर रॉन्ग, अगर आप गलती करोगे तो ऑब्वियसली you will not get angry. Okay, I will not fight but talk calmly. मैं fight नहीं करूँगा. If someone has shout on you, you just speak calmly. मतलब आपको अच्छे से पूछना है कि what is happened, why you are shouting me, understood, like this. See, then page number 27. Let's write 5 sentences about the town, the city or the village you live in. See, already we have we have explained about the lesson. What is the lesson name? Is the mouse tells an Aesop's fable. So we have saw in the lesson there is a town, countryside town, country town, मतलब countryside, and there is a town. There is a two. We can see we saw the two types of cities. मतलब एक शहर का देखे हमने और एक गांव का देखे. So on the basis of, you have to solve this page number 27. There is a 5 sentence. आपको if you are living village, if you are living city, you have to write it down because I don't know where do you live. Understood? जहाँ पे भी आप रहते हो आपको लिखना है. See, जैसे मैं बोलूँगी I live in नागपुर, it is a city, लिख सकते हैं. There are, मतलब लिखो कि क्या है वहाँ पे स्पेशलिटी. मैं जाता हूँ और मुझे आई लव, मतलब मुझे वहाँ की बहुत सारी चीजें आई लव टू डू, आई लव टू गो, मुझे वो सिटी क्यों पसंद है. अंडरस्टूड? ये सब आपको लिखना है. उसके बाद सी, इट्स अ एक्टिविटी टाइम. इट्स अ एक्टिविटी टाइम. वी कैन सी देयर इज अ प्लेट, ऑन प्लेट देयर इज अ सम डिशेस. खाने के जो डिशेस है वो दिए हैं. यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज अ फेमस फॉर दिस सिटी. See, because it is a whole lesson is based on the what city on town. Okay, मतलब city and countryside. Okay, so we have to recognize which dish is a famous for this state or city. Understood? तो यहाँ पे ये Indians love to eat different kind of food. We know we are famous. We are a tradition to हर मतलब हर स्टेट का एक स्पेशलिटी रहती है. जैसे बोलेंगे कि महाराष्ट्र की पूरन पोली, साउथ जो साउथ में बनते हैं तो ऑब्वियसली वी लव इडली डोसा, है ना. तो हमको पता है कि किस स्टेट का, किस राज्य का, किस शहर का क्या फेमस है. फॉर एग्जांपल यहाँ तो डिशेस पूछे, लेकिन हम वी नो द गोंदिया इज अ फेमस फॉर अ राइस सिटी, है ना. राइस सिटी बोलते हैं. सो लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंडियन लव टू रीड, मतलब जो भी इंडियंस है उनको उनके बहुत सारे अनेक प्रकार के डिफरेंट टाइप, अलग अलग प्रकार के क्या है डिशेस है और उनको खाने में वो अच्छा लगता है. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. आई टोल्ड यू देयर इज अ पिक्चर, है ना. डिशेस दी है. मैच द स्टेट विद दिस स्पेशल फूड और डिश. आई टोल्ड यू इट इज अ वी हैव टू मैच, वी हैव टू फाइंड व्हिच डिश इट्स अ which dish the state is a special food. Understood? So I will not give you homework. Actually we will solve together. Okay, we will solve together. See, first दिया है यहाँ पे रसगुल्ला. We are just taking name one by one. After that we will solve. Okay, so first दिया it's a रसगुल्ला. हम जैसे रसगुल्ला से पहले रसगुल्ला. Okay, so it's a रसगुल्ला. Then second is a डोसा सांभर. थर्ड है कि मक्की की रोटी एंड सरसों का साग. फोर्थ वन
कड़ी, है ना। फिर दही जलेबी, देन पाव भाजी, 7th पे है ढोकला। ओके, सो नाउ वी कैन सी वन बाय वन द डिशेज वी हैव टू मैच विद द स्टेट्स। ओके, फर्स्ट क्या है रसगुल्ला का, इट्स अ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मीन्स कलकत्ता, है ना। हम जैसे बोलते हैं कि कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला इज द फेमस। ओके, अच्छा मैंने लिखा है अंडरस्टूड। सो यू हैव टू पुट द नेम फर्स्ट, मतलब रसगुल्ला में देखो यहाँ पे एक दिया है, जस्ट यू हैव टू पुट 1 नंबर, इट्स अ, हमको लिखना है इट्स अ विच वेस्ट बंगाल। अंडरस्टूड। रसगुल्ला इज अ फेमस फॉर विच सिटी, सॉरी विच स्टेट, इट्स अ वेस्ट बंगाल। सी देन डोसा सांभर। बिफोर I go this dish, I told you the dosa sambar is a south. Let's see second number, it's a Tamil Nadu. Second it's a Tamil Nadu. Tamil Nadu is also in south. Tamil Nadu, Andhra. Tamil Nadu, TAMILNADU, it's a Tamil Nadu. Third one, what is the makki di roti and sarson da saag? Obviously we heard so many times Punjab. In a Punjab we can see the makki ki roti sarson ka saag because there is a lots of sarsos वहाँ पे। जैसे I told you the Gondia is a rice city, same as it is the पंजाब में क्या होता है, सरसों की खेती करती है, सरसों की खेती करते हैं। तो obviously we have to recognize when the Punjab we can heard. So you, जैसे ही हम पंजाब बोलेंगे और वहाँ के पूछेंगे कि which is the dish is famous, you will give the perfect answer. What is it that? It is a मक्के दी रोटी and सरसों का साग। Okay. Then fourth है गट्टा कड़ी। गट्टा कड़ी क्या है इसका, राजस्थान, it's a राजस्थान, राजस्थान। ओके, राजस्थान में हम वो भी देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गिल्ली कट्टा से कुछ तो भी बोलते हैं उसको, है ना, जो रोटी के साथ रोटी का जो लोई रहती है उसको दाल के साथ कुछ तो भी है, याद नहीं आ रहा है बट सेम ही है वो। ओके, सो राजस्थान में क्या है, श्री, लेट्स फॉरगेट। ओके, फोर्थ क्या है, इट्स अ राजस्थान। राजस्थान इज फेमस फॉर अ गट्टा कड़ी। ओके, देन फिफ्थ इज अ दही जलेबी। तो दही जलेबी इज उत्तर प्रदेश। फिफ्थ वन क्या है, इट्स अ यूपी, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, इट्स अ यूपी। उत्तर प्रदेश, इट्स उत्तर प्रदेश। जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, इट्स यूपी, इट्स फेमस फॉर यूपी। ओके, 1 second। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द सिक्स्थ वन, इट्स अ पाव भाजी। ऑब्वियसली पाव भाजी इज फेमस फॉर महाराष्ट्र। ओके, इट्स अ महाराष्ट्र, अच्छा महाराष्ट्र। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, ढोकला। ऑब्वियसली ढोकला इज अ फेमस फॉर गुजरात। हम बोलते हैं कि गुजरात में क्या है, ढोकला इज अ फेमस, ढोकला है, फाफड़ा है ना, ये सब क्या है, इट इज अ डिश फॉर गुजरात। देन क्या है, ढोकला हो गया, ओके 7। ओके, सो वी हैड कंप्लीटेड ऑल द स्टेट मैच देयर डिशेस। फर्स्टली देखो, वेस्ट बंगाल इज अ रसगुल्ला, तमिलनाडु फॉर डोसा, पंजाब मक्के दी रोटी, राजस्थान का क्या है, कट्टा कड़ी, उत्तर प्रदेश का क्या है, जल्दी बताओ, उत्तर प्रदेश का, क्या है, दही जलेबी। देन 6 महाराष्ट्र का
pav bhaji, and dhokla, it's a Gujarat. Okay, so we have solved the B ands. Let's speak and let's write. Okay, so or please listen, you have to solve the page number 26 to 2 answers. I told you क्या करना है, कैसे करना है. Okay, and let's write. You have to solve. Where do you live? You have to write it down. What is famous for? You have to love and you go. मतलब कहीं भी आप जाते हो घूमने, you have to write down the 5 sentences. Okay, so students. Okay, so please you have to write it down a correct spelling with the bold letter. Okay, so we will see you tomorrow with a new chapter. Okay, we will meet tomorrow. Till then, take care and keep studying. Take care. Bye bye.